Greetings everyone again. And again, I'm here with a very short comparative topic. Only again with the purpose that we are going to have one-on-one with each other on certain topics so that we can learn that how we are understanding each other's requirements, and also that you understand that how I'm dealing with a particular topic. So in this video, although we are not going to be so elaborate and exhaustive as we do in lectures, because once we start reading the provision, the way it has to be understood, it takes a lot of time. The purpose is to have a brief skim towards a particular topic, and here the topic is the meaning and difference between kidnapping and abduction. So if we see in IPC, there are certain areas in which we have certain confusions, and also we want some particular clarity upon that point, because that clarity will bring the confidence in us to understand that particular point properly. बहुत ज़रूरी है, जब आप डिस्कशन करते हैं तब भी इन सब चीज़ों की चर्चा चल पड़ती है. इंटरव्यू में जाते हैं, अगर आप वकालत कर रहे हैं तो आपसे नॉर्मली पूछ लिया जाता है. एक वीडियो में हमने थेफ्ट और एक्सटॉर्शन का डिफरेंस देखा. थेफ्ट क्या, एक्सटॉर्शन क्या है. बेस्ट एग्जांपल है, जहां पर आपका कंसेंट नहीं लिया वो थेफ्ट है, जहां पर आपका कंसेंट तो है लेकिन फ्री नहीं है वो एक्सटॉर्शन है. दोनों में डिलीवर हो रही है प्रॉपर्टी ही, एक में सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी, एक में मूवेबल इमूवेबल बोथ, और वैल्यूएबल सिक्योरिटी मूवेबल प्रॉपर्टी ही होती है. तो अल्टीमेटली अगर आप खुद देते हैं, एक में टेकिंग एक में गिविंग है. देखिए, अगर आप एग्जाम्पल और उसका एस्पेक्ट समझ गए तो आप खुद ही डिफरेंसेस क्रिएट करना शुरू कर दोगे. और थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन के वीडियो में जितना भी पीपीटी में आपने देखा होगा, जो भी मेरे पीछे चलता रहा, जहां मैं आपको लैंग्वेज पे या फिर जो कंटेंट था उस पर समझाता रहा, माइंड इट, जब आप जुडिशरी की तैयारी करते हैं तो अगर क्वेश्चन आता है 10 नंबर का, तो वो पीपीटी आपका पूरा आंसर था. थोड़ा सा और ब्रीफ में लिखना था बस. जैसे मैंने प्यारेलाल भार्गव का केस था, उसमें एक और एक्सटॉर्शन का केस भी उसमें मेंशन कर रखा था. द ओनली इंटेंट दैट आई वांटेड टू मेंशन दैट केस was for you to understand that if there is a 10 marker question and it asks you that what is the difference between theft and extortion, you can write all that what is written: definition, ingredients, brief explanation, a case, next definition, ingredients, brief explanation, a case, difference. Then those columns of difference, basis, या तो आप नैरेटिव फॉर्म में लिख दीजिए, नहीं तो फिर जैसे यहाँ पर एक वो टेबुलर फॉर्म में बनाया था वैसे भी आप बना सकते हैं कि बेसिस ये है, थेफ्ट ये ऐसे बोलता है और किडनैपिंग ऐसे बोलता है. सो यू हैव टू कार्व आउट 5 to 6 differences. If the question comes that what is the difference between theft and extortion, the only thing you have to write is the basis of difference. That's it. That means the differences. You do not have to write the provision, you do not have to write the ingredients, you do not have to write the meanings, because it is only asking purely the differences, and that too in 5 marks. So in a 5 marker you have no liberty to write extensively, but in a 10 marker, because you have to add content to it in the difference. For example, in 10 marks also the question comes, what is the difference between theft and extortion? Now writing only the difference is less. That is why you have to understand that the marks anointed towards the questions are very important to understand. अगर मार्क्स का कोई रोल ही नहीं था तो मार्क्स दिए क्यों हैं? 200 नंबर 250 नंबर का पेपर क्यों बता रहे हो हमें? आप बस क्वेश्चन पूछो, हम जवाब देंगे. अगर एटीट्यूड यही रखवाना था कि मार्क्स वार्क्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको 5 नंबर में पूछें, 1 नंबर में पूछें या 10 नंबर में, लिखना आपको सब कुछ ही है, अगर यही सच्चाई थी तो 200 नंबर का पेपर क्यों है भाई? आप बस क्वेश्चन पूछिए, अब हम डिसाइड करेंगे हमको कितना लिखना है. वो मार्क्स आपका एटीट्यूड सेट करने के लिए है. हर चीज कुछ ना कुछ रीजन से है. बीच बीच में आपको जब मोटिवेशनल लेक्चर्स मिलेंगे, व्हेन वी आर डूइंग एनी सब्जेक्ट और थ्रू इन द कोर्स, so we will see that I am going to give you the glimpse of the reality of competition, which is very important for you to understand, because if you're not getting that glimpse, you will always be marred by the confusions that you have. You see the logic, if you are apprised by it, only then you follow. That is why I gave you the detailed analysis of the notifications of the states.
मैंने कम से कम 5 स्टेट के आपको एनालिसिस दे दिए। उसका पर्पस ही यही था कि आपको थोड़ा सा अप्राइज होने को मिले कि कैसे हमें स्ट्रैटेजीज बनानी है, और उसके लिए मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला, सब कुछ पैराग्राफ्स में लिखा हुआ था। एंड देन इफ यू सी द लॉजिक कम्स फ्रॉम देयर। तो यही आपको हेल्प करेगा। अब जब ये मैं किडनैपिंग और अबडक्शन के बारे में चर्चा शुरू करूंगा, ऑल्दो आई हैव टेकन दीज 10-15 मिनट्स टू ओनली डिस्कस द एस्पेक्ट that why these PPTs are going to be important for you. So when you watch this video, kindly bear in mind that whatever differences we are making, whatever content we are writing is the answer. आप लोग तो मॉडल आंसर्स के पीछे पड़ जाते हैं ना, तो मॉडल आंसर्स हैं ये आपके लिए। और 10 मार्क का क्वेश्चन आया तो ये पीपीटी का कंटेंट थोड़ा ब्रीफ में करके लिख दीजिए, और 5 नंबर का आया तो जो हम लास्ट में डिफरेंसेस पढ़ेंगे किडनैपिंग एब्डक्शन का, उसको या तो नैरेटिव फॉर्म में लिख दीजिए या टैबुलर फॉर्म में लिख दीजिए, आपकी मर्जी है, नंबर मिल जाएंगे आपको वो 5 नंबर में। एंड दैट इज द पर्पस वी आर मेकिंग दिस वीडियो, सो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू गेट द क्लैरिटी, so that even if tomorrow you're not understood, you have not crammed the point of differences properly, you have understood the concept and now you can take out your own differences, जैसे हमने अभी theft और extortion में किया। Having said that, let us see what is the difference, or first of all the meaning of kidnapping and abduction, and then the difference between the two. क्या दोनों एक ही हैं? अगर एक ही होते तो अलग अलग डेफिनेशंस क्यों होती? क्या दोनों को अपहरण बोलते हैं? ऐसा नहीं है। एब्डक्शन, जैसे हम हिंदी में जब न्यूज रिपोर्ट्स पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा जाता है कि एक बच्चे का अपहरण हो गया। क्या अपहरण दोनों के लिए लगता है? एक को बोलते हैं व्यपहरण और एक को बोलते हैं अपहरण। किडनैपिंग इज व्यपहरण, एब्डक्शन इज अपहरण। ये क्यों मैं बता रहा हूं आपको, although I am not dealing with the Hindi side of it, my lecture is going to be, or my discussion is always going to be primarily in English and then also the Hindi part, for the purpose of giving more pressure upon certain points which you may understand only when you are understanding in Hindi. तो वो एक एस्पेक्ट अलग है, पर यहां पर मैं अपहरण व्यपहरण क्यों बता रहा हूं आपको, मैं भी देख के ही आया हूं कि दोनों का अलग अलग हिंदी में मीनिंग क्या है, वो हिंदी में शब्द क्या है। क्यों देखना पड़ा? क्योंकि आप जब न्यूज रिपोर्ट्स पढ़ते हैं तो आप सिर्फ अपहरण ही पढ़ते हैं, अपहरण हो गया। व्यपहरण वर्ड बहुत रेयरली यूज किया जाता है न्यूज रिपोर्ट्स में, विच इज वन ऑफ द रीजन व्हाई यू डू नॉट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू। इसीलिए आप कभी उस डिफरेंस पे जाने की कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि जो लिखने वाला है वो ये सब देख के नहीं लिखेगा और वो बार बार आपको नहीं बताएगा कि अपहरण और व्यपहरण में क्या डिफरेंस है। न्यूज रिपोर्ट्स लिखने वाला कानून की उतनी जानकारी नहीं रखता, इसीलिए जब वो लिखता है तो वो कुछ भी लिख देता है, और कुछ भी में वो जो समझ में आता है उसको जनरल बोलचाल की भाषा में वो उसी शब्द का प्रयोग करके अपनी रिपोर्ट खत्म करता है। और लोग भी उसको अपहरण पढ़ के सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि हाँ भाई कोई किसी को ले गया, बिना पूछे, उससे खुद बिना पूछे या जिससे पूछना चाहिए था उससे पूछे बगैर कोई किसी को ले गया। हमारे दिमाग में स्टोरी यही आती है कि भाई कोई किसी को जबरन उठा के ले गया है, इसी को अपहरण बोलते हैं। अब वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, औरत हो, मर्द हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। इसीलिए वो ये नहीं देखता कि क्या हुआ है कानूनी, मैं उस कानूनी शब्द का प्रयोग करके लोगों को बार बार ये बताऊं कि देखो यहां पर व्यपहरण ही आएगा और यहां अपहरण ही आएगा, जिससे कि लोग उसको जानने की चेष्टा करें। ऐसा नहीं होता। तो मैं आपको बता देता हूं कैसे आपको समझना है अपहरण और व्यपहरण, और बहुत ही सरलता से हम सिर्फ ये समझेंगे, बहुत ही शालीनता से, कि हो क्या रहा है डिफरेंस। कानूनी अगर मैं आपको भाषा में समझाने लगूंगा तो फिर तो कानून के छात्र ही थोड़े बहुत समझ पाएंगे, लेकिन अगर मैं आपको सरलता से थोड़ा सा डिफरेंस समझा दूं तो हर कोई समझ लेगा कि व्यपहरण और अपहरण में क्या डिफरेंस है। क्योंकि यहां पर वर्ड यूज किया हुआ है किडनैपिंग, और एक वर्ड है किड, और यहां पर यूज किया हुआ है टर्म एब्डक्शन। मैं किडनैपिंग वर्ड जो है इसका कोई डिक्शनरी मीनिंग नहीं है, सच कोई लिटरल मीनिंग नहीं है।
ये एक कार्व्ड आउट वर्ड है। कार्व्ड आउट मतलब ये लॉ के लिए बनाया गया है किडनैपिंग। कई बार क्या होता है, इसी को रिलेट कर देते हैं चाइल्ड स्टीलिंग से। इसी को रिलेट कर देते हैं माइंडेड है नहीं, इसी को रिलेट कर देते हैं चाइल्ड स्टीलिंग से। चाइल्ड स्टीलिंग मतलब, स्टील का मतलब क्या होता है? अब ये ना स्टील वर्ड हमारे पास है और ना ही चाइल्ड स्टीलिंग वर्ड हमने कहीं डिफाइन कर रखा है। चाइल्ड स्टीलिंग वर्ड आईपीसी में सिर्फ एक ही जगह प्रयोग हुआ है, वो कहां हुआ है उसकी हमारी चर्चा अभी नहीं है। ठग्स में हुआ है 310 अगर आप पढ़ेंगे तो, वो चर्चा अभी हम नहीं कर रहे। चाइल्ड स्टीलिंग दो वर्ड से बनता है, चाइल्ड मतलब कि बच्चा और स्टीलिंग मतलब कि चोरी। अभी हमने एक वीडियो और में थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन का डिफरेंस देखा, तो थेफ्ट को मैंने चोरी बोला, यहां पर स्टीलिंग को चोरी बोल रहे हो, तो स्टीलिंग चोरी है कि थेफ्ट चोरी है? अब आईपीसी के देखो, यही होता है सिविलियन और एक कानून के ज्ञाता के बीच में डिफरेंस। जो कानून का ज्ञाता होगा वो कभी भी स्टील वर्ड नहीं यूज करेगा, वो हमेशा थेफ्ट वर्ड यूज करेगा। लेकिन जब थेफ्ट हो जाती है उसके बाद जो मूवेबल प्रॉपर्टी आपने चुरा ली है उसको बोलते हैं स्टोलन गुड्स, जो कि वर्ड आया स्टील से। देखिए यही तरीका है बस कानून को समझने का। तो स्टील वर्ड तो यूज नहीं कर रहे वो, लेकिन थेफ्ट वर्ड यूज कर रहे हैं, पर स्टील वर्ड को आगे दूसरे ग्रामेटिकल वेरिएशंस में यूज किया हुआ है। स्टोलन गुड्स के नाम से हमारे पास डेफिनेशन है। तो स्टोलन गुड्स कोई पूछे कि भैया स्टोल क्या है, तो वो तो पास्ट हो गया। किस चीज का? वो प्रेजेंट जो तब हुआ था, स्टील, जिसको आप थेफ्ट बोल रहे हो। समझ रहे हो ये क्या चक्रव्यूह है? और इसी तरीके से एक कानून के ज्ञाता को किसी भी शब्द का प्रयोग करना है। और मैं क्यों इस पे स्ट्रेस दे रहा हूं? क्योंकि आप जब इस प्रोफेशन में आएंगे तो आपके शब्दों का चयन जो है, द वे यू आर गोइंग टू पिक वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट, it is very important for you to understand that you have to sound differently from the people who are communicating in general language, because you belong to a profession, you must have professional words with you and you must talk professionally. तो आप ये नहीं कह सकते कि सर यहां पर स्टीलिंग हुई है। क्या हुआ? स्टीलिंग हुई है, थेफ्ट बोलिए। थेफ्ट इज द प्रॉपर वर्ड। स्टीलिंग भी वही है, लेकिन स्टीलिंग वर्ड यूज नहीं कर रहे, स्टील वर्ड यूज नहीं कर रहे। पर जब गुड्स स्टोलन की बात आएगी तो स्टोलन वर्ड यूज कर सकते हो, जो कि स्टील का पास्ट टेंस है। क्लियर है? अब चाइल्ड स्टीलिंग वर्ड कहीं डिफाइंड नहीं है। किडनैपिंग को हम चाइल्ड स्टीलिंग भी समझ लेते हैं, जिसमें चाइल्ड कौन हो गया? बच्चा, मतलब किड। और यहां पर नैपिंग इज स्टीलिंग। नैपिंग मींस कहीं ना कहीं उसको हटा देना वहां से। थेफ्ट में हमने पढ़ा था एक कॉन्सेप्ट की टेक, यही वर्ड आपको देख लेना डेफिनेशन में मिल जाएगा। चाइल्ड स्टीलिंग, स्टीलिंग अकिन टू थेफ्ट। थेफ्ट मतलब टेकिंग, टेकिंग मतलब दूर ले जाना बिना कंसेंट के। थेफ्ट वाला वीडियो याद रखो, बिना कंसेंट के दूर ले जाना, गिविंग नहीं है, टेकिंग। जब आप बच्चे को दूर ले जाते हैं किसी से तो उसी को किडनैपिंग या चाइल्ड स्टीलिंग बोला जाता है। अब कई बार इसको बहुत इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, तो आपको अभी अपहरण और व्यपहरण का डिफरेंस समझ में आएगा और किडनैपिंग और एब्डक्शन का डिफरेंस समझ में आ जाएगा। अगर इतनी बात समझ में आ गई, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बहुत बेसिक समझा रहा हूं, उसके बाद डिफरेंस देखना आप खुद ही समझ जाएंगे। मुझे बहुत डिटेल में इसको आपको डिस्क्लेयर एग्जॉस्टिवली आपसे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही समझ जाएंगे। तो किडनैपिंग वर्ड जो है उसको आप जनरल पैरलेंस में चाइल्ड स्टीलिंग बोल देते हैं, जबकि ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये चाइल्ड स्टीलिंग से इक्वेट नहीं किया जाता एज सच। क्योंकि पहली बात तो यहां पर जो चाइल्ड और किड की आप परिभाषा लेके आएंगे, पहली जो इसकी रीजन है व्हाई यू कैन नॉट कॉल इट चाइल्ड स्टीलिंग, आई जस्ट यूज्ड अ डिफरेंट कलर पेन, क्योंकि यहां पर किड की जो परिभाषा है या चाइल्ड की परिभाषा है वो 18 साल से नीचे वाला नहीं है। इट कुड बी बॉय और गर्ल,
यहां पर बॉय हो या गर्ल दोनों को अलग अलग उम्र से चाइल्ड समझा जा रहा है। जैसे कि अगर बॉय है तो उसको 16 साल से नीचे चाइल्ड समझा जाता है, ना कि 18 साल से नीचे। हाँ, लेकिन अगर वो एक लड़की है, गर्ल, तो उसको 18 साल से नीचे चाइल्ड समझा जा रहा है। तो खाली चाइल्ड स्टीलिंग बोलने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि चाइल्ड की परिभाषा में तो बच्चा आ जाएगा, और बच्चा 18 साल से नीचे का होता है, जिसको आप माइनर बोलते हैं। 18 साल से नीचे जो व्यक्ति होता है, 18 साल तक 18 साल तक ना आने वाला व्यक्ति जो होता है, मतलब अभी 18 साल का नहीं हुआ, हैप्पी बर्थडे नहीं हुआ उसका, उसको आप माइनर बोलते हैं कुछ एक्ट्स के लिए। इंडियन मेजोरिटी एक्ट के अकॉर्डिंग ये माइनर मेजर है। पर अगर आप किडनैपिंग का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, तो किडनैपिंग में जो किड या चाइल्ड है वो एग्जैक्टली 18 साल से नीचे वाले नहीं है। अगर वो बॉय है, लड़का है, तो वो 16 साल से नीचे की बात कर रहे हैं। अगर वो गर्ल है, लड़की है, तो वो 18 साल से नीचे की बात कर रहे हैं। इसका मतलब चाइल्ड वर्ड लेना खाली हमारे लिए काफी नहीं होगा। किडनैपिंग को समझने के लिए हमें इस एस्पेक्ट को समझना होगा कि उम्रें अलग अलग हैं दोनों की। तो इसका मतलब अगर आप व्यपहरण की बात कर रहे हैं, व्यपहरण में हमेशा किसका टेकिंग होगा, किसको ले जाया जाएगा? एक 16 साल से नीचे लड़के को या 18 साल से नीचे लड़की को। अगर लड़का 16 साल या फिर ऊपर का निकला तो भी है, तो वो देखा जाए जनरल पार्लेंस में तो वो बच्चा ही है, 18 साल से नीचे है अभी। लेकिन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग व्यपहरण नहीं हो सकता उसका। क्या होगा? इसका सिर्फ अपहरण होगा। अब इसका सिर्फ अपहरण ही हो सकता है। अपहरण भी क्या है वो भी हम समझेंगे, देखो। लेकिन बेस बना लीजिए। अगर आप ये शुरुआत से, स्टेजेस से एक एक स्टेप करके चीजें समझोगे, तभी आपको चीजें इनकलकेट होंगी। मैं यहां पर आपको प्रोविजन समझाने बैठूंगा एक एक पॉइंट, तब तो इट विल टेक अनदर 3 days फॉर मी, 3 hours डेली टू ओनली एक्सप्लेन यू व्हाट इज किडनैपिंग। देयर आर सेवरल थिंग्स इनटू इट, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं उसके अंदर। मुझे लॉफुल और लीगल गार्जियन समझाने में ही आपको एक दिन लगेगा। तो प्रोस्पेक्ट्स हैं, पर आप जैसे ही ये छोटी सी जानकारी प्राप्त कर लेंगे, आपकी चीजें सामने क्लियर होने लग जाएंगी। अब जब भी आप अखबार पढ़ेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे? व्यपहरण है कि अपहरण। और व्यपहरण देखने के लिए क्या देखेंगे? लड़के का हुआ है, लड़का 16 साल से नीचे था, क्या था? व्यपहरण। नहीं था, अपहरण। और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं। लड़की की उम्र देखो, उम्र देखो। इसीलिए उम्र जो है वो एक क्राइटेरिया बन जाती है अपहरण और व्यपहरण के बीच में डिफरेंस क्रिएट करने का, और ये बेस है, बेसिक क्राइटेरिया है। क्योंकि अगर वो 16 साल से नीचे है तो अब व्यपहरण ही होगा। अब पूछा जाए कि क्या 16 साल से नीचे में अपहरण नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। वो जब हम अपहरण पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। बिल्कुल हो सकता है, 16 साल से नीचे भी अपहरण हो सकता है। इसलिए जब न्यूज रिपोर्ट्स वाले लिखते हैं तो वो गलत नहीं लिखते, ऑल्दो वो कानून का ज्ञाता नहीं है। इसलिए जब व्यपहरण लग रहा हो वो तब व्यपहरण भी नहीं लिखते, वो अपहरण ही लिख देते हैं, क्योंकि वो ये डिफरेंस नहीं समझ पा रहे। जब आप डिफरेंस समझ जाएंगे, जब आप इसके इंग्रेडिएंट समझ जाएंगे कि हमें किन किन चीजों को देखना है। अभी तो एक ही चीज बताई ना, एज, आयु। अभी तो मैं सिर्फ आपको एज फैक्टर समझा रहा हूं कि एज एक फैक्टर है जो आपको देखना है अपहरण व्यपहरण के बीच के डिफरेंस के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 16 साल से नीचे का अपहरण नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। एबडक्शन कर सकते हो आप उसकी भी। कैसे, अभी समझ में आ जाएगा। पर पहले यह समझिए कि यहां पर किडनैपिंग, चाइल्ड स्टीलिंग में चाइल्ड स्टीलिंग वर्ड यूज नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि चाइल्ड का तो सिंपल मीनिंग होगा 18 साल से नीचे, जबकि यहां पर लड़के के केस में 16 साल से नीचे हो रहा है। तो चाइल्ड स्टीलिंग तो नहीं है। दूसरा रीजन क्या है? देखिए, ये तो हो गया एज, चाइल्ड को देखने के लिए। दूसरा रीजन क्या है कि इसको चाइल्ड स्टीलिंग नहीं बोल सकते या किडनैपिंग नहीं बोल सकते, या ये एक गलत टर्म है, क्योंकि यहां पर अनसाउंड माइंड की भी बात करी गई है। अनसाउंड माइंड, जैसे मैंने यहां 1 और 2 लिख दिया, यहां पर मैं
पहला रीजन लिख देता हूं और यहां दूसरा रीजन। अनसाउंड माइंड मतलब जिसका दिमाग परिपक्व ना हो, जो रोजमर्रा के डिसीजंस ना ले सकता हो, जो अपने इंटरेस्ट पे कोई भी एक्ट ना कर सकता हो। इसका मतलब जिसको कुछ भी डिसाइड करने से पहले मदद चाहिए, क्योंकि उसका दिमाग जनरल चीजों को भी एनालाइज करने में अभी सक्षम नहीं है, इमेच्योरिटी ऑफ माइंड है। उसी को बोलते हैं पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। साउंड माइंड नहीं है। साउंड माइंड किसको बोलते हैं? ये थोड़ी जिसको साउंड सुनाई दे रही है वो साउंड माइंड है। ये बैंड बजाओ ना, देखो ढोल बजाओ, ढोल बजाया, सुनाई दे रहा है तो साउंड है भाई, साउंड सुनाई दे रहा है, साउंड माइंड है। वो नहीं है साउंड माइंड। ये लॉ है। लॉ में जितना भी वर्ड आप सुनो उसको लिटरल इंटरप्रिटेशन सिर्फ एक सेफ साइड इंटरप्रिटेशन होती है, पर करनी आपको पर्पसिव है। लॉ में साउंड माइंड वो होता है जो फैक्ट्स को एनालाइज करके अपने इंटरेस्ट पे और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उसको यूज कर सके, कैलकुलेशंस कर सके, जनरल मैथ्स यूज कर सके। कोई उसको समझाए कि भाई तुम्हारा ये ऐसे प्रॉपर्टी था, ये गिरवी रख दिया था, उसको गिरवी दे दिया था, वो बेचारा हाँ 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 अच्छा, तो अब वो उसको तुम पैसा नहीं दोगे तो वो ले जाएगा प्रॉपर्टी। अच्छा अच्छा ठीक ठीक ले जा, कोई, अरे तुम्हें समझ में आ रही है? हाँ हाँ ले जाए ले जाए। अरे तुम्हारा प्रॉपर्टी चला जाएगा, पैसा दे दो, तुम्हारे पास है। हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं। दैट मीन्स यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। अरे फिर आप क्या बोलेंगे? इसको समझ में आती है क्या? इसमें बुद्धि है? इसको समझ में आ रहा है मैं कितनी छोटी सी चीज बोल रहा हूं, वही समझ नहीं पा रहा है ये? मूर्ख हो तुम, ऐसा ही बोला जाता है। पर वो मूर्ख नहीं है। ऐसा नहीं कि वो जानते हुए भी अनजाना हो रहा है, वो समझ ही नहीं पा रहा है क्योंकि उसके मेंटल फैकल्टीज में कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है। वो एक मेंटल कंडीशन है। ऐसे व्यक्ति को भी अगर आप ले जाते हो तो क्या माना जाएगा? व्यपहरण। खाली यही नहीं देखना, अभी और भी चीज देखनी है व्यपहरण बनाने के लिए, लेकिन ये लोग बेस बनते हैं। इन्हीं लोगों का व्यपहरण हो सकता है। किन किन का? 16 साल से नीचे लड़के का, 18 साल से नीचे लड़की का, और एक अनसाउंड माइंड का ही व्यपहरण हो सकता है। इसका मतलब 16 साल से ऊपर लड़के का, 18 साल से ऊपर लड़की का, और एक साउंड माइंड का आप व्यपहरण नहीं कर सकते। उनका क्या होगा फिर? अपहरण होगा। इनका भी आप अपहरण कर सकते हो। यही तो मजा है, तभी तो डिफरेंस है, और यही सिमिलैरिटीज है। यही आपको समझना है। इसीलिए आप हमेशा कंफ्यूज रहते हो, क्योंकि अपहरण के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, वो है ताकत या छल। अगर आप ताकत का प्रयोग करके ले जाएं किसी को, पकड़ा हाथ और ले गए। देखें कभी पुलिस वाले अरेस्ट करते हुए किसी को? पुलिस वाला जब किसी को अरेस्ट करता है तो क्या करता है? सीआरपीसी में पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है, पुलिस एक्ट में भी गाइडलाइंस दी हुई हैं कि आपको अरेस्ट कैसे करना है। जब पुलिस वाला जाता है किसी को तो उसको पकड़ लेता है, वो भागने की कोशिश करेगा, नहीं मुझे छोड़ दो, वो उसका वो आजकल तो उंगलियां फंसा लेते हैं ये लोग, और फिर ऐसा पकड़ लेंगे उसको, जिससे कि उसका हार्ट डिसेबल हो जाए मूवमेंट के लिए। अब हार्ट डिसेबल हो गया तो कहीं हिल पाएगा ना बेचारा, उसकी बॉडीली मूवमेंट अपने हाथों में ले ली, अब कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। अब जहां जहां तुम घूमोगे वो आपके साथ साथ घूमता रहेगा। और ये वो कर कैसे पा रहा है? कैसे आप उसको वहां से ले गए? फोर्स लगा के, ताकत लगा के। जब आप ताकत लगा देते हैं, फोर्स, और उसको वहां से खिसका देते हैं, कहीं और ले जाते हैं उसकी मर्जी के बगैर, तो इसको बोलते हैं अपहरण। और अगर आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि अपहरण में कोई एज नहीं लिखी, मतलब आयु सीमा नहीं लिखी। वहां पर लिखा है एनी पर्सन टेकन फोर्सफुली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एनी पर्सन, एनी, एनी पर्सन में तो फिर सबको ही आ जाएगा।
यही तो मजा है। अभी देखो, दोनों को अलग अलग भी देखना है और दोनों का समावेश भी समझना है। जब इसकी अमेलगमेशन और इसकी डिफरेंस समझ जाओगे तो इन दोनों को पढ़ने में आपको जो सरलता दिखेगी या इंग्रेडिएंट्स को, वो अपने आप ही समझा देगी आपको। अभी तो मैं सिर्फ भूमिका बना रहा हूं और उस भूमिका में ही आपका डिफरेंस है। समझिए इस बात को। तो पहली चीज क्या देखनी है? आयु सीमा। दूसरी क्या देखनी है? अनसाउंड माइंड। अगर वो साउंड माइंड का नहीं है तो आप उसको ले जा नहीं सकते। अब कोई पूछे कि भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो? घर में अगर मान लो कि कोई स्कूल में अगर किसी का बच्चा गया हुआ है, छुट्टी हो गई स्कूल की, तो उसके अभिभावक जो उसके गार्जियन हैं, उसके माँ बाप, primarily माँ बाप, they are not the only guardians are of 4 types, which is very important for you to understand, because once we discuss about the term legal guardian and lawful guardian, only then you will be able to understand that legal guardians are of 4 types and lawful guardian are of numerous types. It is a situation, it is a factor. Rather than it should be recognized in law, it should be rather than it is recognized as legal guardian, it should be recognized in law as a person having control of that particular person at that point of time. ये चीजें, ये चर्चा जो है, ये हम लेक्चर में करेंगे। यहाँ करी तो मैंने एनी हाउ आई हैव टोल्ड यू दैट इट इज गोइंग टू टेक टाइम। 1-1.5 घंटा 2 घंटा लग जाता है आराम से समझने में, पर आइडिया आप समझ जाएंगे। अभी देखना, अब मैं ये जानना चाहता हूं, अब आपके दिमाग में आएगा कि देखो, मैं अगर स्कूल में जाके अपने बच्चे को स्कूल से लाना चाहूं, तो स्कूल से ले जा रहा हूं तो वो है तो 16 साल से नीचे, 8वीं 9वीं कक्षा में पढ़ता है, मान लीजिए 9, 10 या 11 साल का है, 12 साल का है, 13 साल का है, 16 से नीचे ही है, दोनों ही 16 से नीचे हैं, लड़की हो या लड़का। तो अगर मैं उनको वहां से लेके जाऊं तो क्या ये व्यपहरण हो गया? आया ना क्वेश्चन दिमाग में? स्कूल वाले अगर मान लो सुबह बच्चे को स्कूल लेके जाएं तो क्या ये व्यपहरण हो गया? यहीं पे तो बात आ जाती है कंसेंट की, कि कंसेंट होना चाहिए ले जाने के लिए। अगर बिना पूछे ले जाएंगे तो ही व्यपहरण होगा, अगर पूछ के ले जाएंगे तो किस बात का व्यपहरण भाई? माँ बाप रोज अपने बच्चों को जबरदस्ती न जाने कहां कहां ले जाते हैं। अब आप कहेंगे ये तो आप कह रहे हो कि अपहरण तो बच्चों का भी हो सकता है, मतलब अगर फोर्स लगा के ले गए एक जगह से दूसरी जगह तो माँ बाप रोज अपहरण कर रहे हैं? ऐसा नहीं। अगर ये समझ में आ गया हो तो अब छोटी सी बात और समझिए। देखिए, देखो मैं इसी पेज पे, अभी स्लाइड शुरू भी नहीं करी, मैं इसी पेज पे आपको राम कहानी पूरी अभी समझाता हूं। देखिए, पहला था हमारा एज। एज में 16 साल से नीचे होना चाहिए और 18 साल से नीचे होना चाहिए अगर गर्ल है तो, और ये बॉय। दूसरा हमें एक फैक्टर याद रखना है, वो है अनसाउंड माइंड। अब जब भी आप न्यूज रिपोर्ट पढ़ें तो देख लें कि जब भी अपहरण की कोई चर्चा या कोई न्यूज रिपोर्ट आए, कोई समाचार आपको मिले, तो आप उसमें खंगालें कि जो आपने ये अभी समझा क्या उसमें से कुछ है। अगर है तो वो भले ही अपहरण लिख रहा हो, बनेगा व्यपहरण। दूसरी चीज आप देखिए कि अनसाउंड माइंड तो नहीं है, और अनसाउंड माइंड होने के लिए एज इज नो बार, नो बार ऑफ एज। एक 18 साल से ऊपर का लड़का और 16 साल से ऊपर की लड़की भी अनसाउंड हो सकती है। 35 साल का जवान, 35 साल का एक वयस्क भी अनसाउंड हो सकता है। 40 साल 50 साल का एक व्यक्ति भी अनसाउंड हो सकता है। 60 साल का एक वृद्ध भी अनसाउंड हो सकता है। तो अनसाउंड होने की कोई सीमा नहीं है, ये भी व्यपहरण का ही एक हिस्सा है। इसका मतलब किडनैपिंग, किड, चाइल्ड स्टीलिंग, चाइल्ड बोलना गलत है। 2 रीजन मैंने आपको बताए थे, अब समझ में आ गए होंगे। क्योंकि यहां पर अनसाउंड माइंड की कोई
एज बार नहीं होती। और चाइल्ड जैसे हम 18 साल से नीचे समझते हैं, यहां पर 16 साल के ऊपर वाले को चाइल्ड नहीं मान रहे, किड नहीं मान रहे। 16 साल से ऊपर 18 साल तक बॉय को आप नहीं मान रहे इसका सब्जेक्ट मैटर व्यपहरण का, उसका फिर सिर्फ अपहरण ही होगा 16 साल के बाद। क्या ये बात क्लियर हुई? तो इसीलिए किडनैपिंग में आपको फैक्टर्स पे जाना है, फीचर्स देखने हैं, इंग्रेडिएंट्स देखने हैं, ना कि आपको उस टर्म को समझना है। टर्म तो किडनैपिंग दिया हुआ है। तीसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है वो है कंसेंट की, कंसेंट ऑफ लॉफुल गार्जियन। लॉफुल गार्जियन, लॉफुल का मतलब होता है रिकॉग्नाइज्ड इन लॉ। जैसे कि एक एग्जांपल समझ जाओगे, जैसे कि, और कंसेंट चाहिए, कंसेंट मतलब हाँ, सब कुछ सूझने बूझने के बाद दी गई हाँ कंसेंट बोली जाती है, खाली हाँ भी नहीं। समझने के बाद दी गई कंसेंट, समझने के बाद दी गई हाँ हाँ बोली कंसेंट मानी जाती है। कंसेंट एक लूज टर्म नहीं है, कंसेंट बहुत पेक्यूलियर टर्म है लॉ में। और ये तो आप अब मूवीज भी बन रही हैं, आप बहुत सारे लॉज में पढ़ भी चुके हैं। जैसे आप रेप लॉ में पढ़ते हैं कि नो मीन्स नो का आपने इस जो फ्रेज है ये बहुत आपने सुना होगा, बहुत सारी मूवीज में भी अब यूज कर रहे हैं, नो मीन्स नो, नो कंसेंट मीन्स नो कंसेंट। तो कंसेंट वर्ड क्या है उसको डेवलप करना पड़ता है। कानून में ये टर्म बहुत क्रूशियल है। कंसेंट वर्ड का मतलब नहीं कि मैंने हाँ कर तो दी थी, हाँ सोच समझ के करनी जरूरी है। कौन ले जा रहा है, क्यों ले जा रहा है, कहां ले जा रहा है, जितना दिया कंसेंट उतना ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, सुबह सुबह आपके घर में रिक्शे वाला आपके बच्चों को स्कूल लेने आया, तो वो कौन रिक्शे वाला है जिसको हमने ये काम करने के लिए दिया? रिक्शे वाला उसको रिक्शे पे ही बिठाएगा और स्कूल तक ले जाएगा, इसके अलावा कहीं भी ले गया तो कंसेंट नहीं थी हमारी। जबकि आप कहोगे ले जाने का तो आपने हाँ करी थी। अरे कहां ले जाने की हाँ करी थी? स्कूल तक ले जाने की हाँ करी थी, घर से स्कूल, इसके बीच में और कहीं नहीं। अगर आपको 5 बच्चे भी इसमें और इकट्ठा करने थे तो बस उन 5 बच्चों को इकट्ठा करने की कंसेंट थी, छठवा भी नहीं। एक रिक्शे वाला जब माँ बाप से बच्चे को अपने रिक्शे में बिठाता है कि मैं इसको स्कूल ले जाऊंगा, तो अगर वो अपने घर चला गया और वहां बैठ के पहले खाना खा रहा है, बच्चे वहां बैठे इंतजार कर रहे हैं, इसकी कंसेंट नहीं दी थी। वो पहले अपने काम करने कुछ गैस सिलेंडर की एजेंसी पे चला गया, वहां आराम से काम कर रहा है, इसकी कंसेंट नहीं दी थी। हमने कंसेंट दी थी कि यहां से सीधा घर तक स्कूल तक लेके जाओगे। कंसेंट बहुत सारे फैक्ट्स पे डिपेंड करती है। उसने ये कंसेंट नहीं दी थी कि तुम स्कूल ले जाओगे, उसके बाद स्कूल से पिकनिक पे ले जाओगे, फिर उसके बाद पार्क ले जाओगे, ये सब कंसेंट नहीं है। अब स्कूल छुट्टी होने के बाद स्कूल से घर लेके आओगे, इतनी ही कंसेंट है, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। अब मान लो इसके अलावा वो कुछ भी किया तो वो कंसेंट नहीं थी उस लॉफुल गार्जियन की। लॉफुल गार्जियन कौन हुआ? सबसे पहले तो आपके मां बाप ही। तो आपके मां बाप अगर किसी को आपको ले जाने के लिए हां कर देते हैं तो उसके पास ले जाने का अधिकार है। अगर वो हां नहीं करते तो उसका व्यपहरण हो सकता है। अब समझिए दूसरा चरण, कौन होता है लॉफुल गार्जियन? मां बाप ने जब रिक्शे वाले को सौंप दिया बच्चा कि ठीक है तुम ले जाओ, तो अब जो बच्चे का रख रखाव और देखभाल है वो रिक्शे वाले के हाथ में है। मां बाप से वो छूट गया है उसका कंट्रोल। अब जो कंट्रोल है उस बच्चे को ढंग से रखने का, सही से बिठाने का और सही सलामत स्कूल पहुंचाने का, वो कंट्रोल रिक्शे वाले के हाथ में है। आपकी स्कूल बस जो आप कंडक्टर और ड्राइवर देख रहे हैं, और अगर स्कूल बस वो कंडक्टर ड्राइवर इंडिपेंडेंट है तो वो खुद, नहीं तो अगर वो स्कूल के ही कंडक्टर ड्राइवर अपॉइंट किए गए हैं तो स्कूल आपका लॉफुल गार्जियन बन जाता है। गार्जियन का मतलब है टू हैव अ गुड कंट्रोल ओवर दैट पर्सन। बच्चे की रख रखाव बच्चा खुद नहीं कर सकता। बच्चे को नहीं पता उसे कहां जाना है, कहां नहीं जाना है। बच्चे को बहलाया फुसलाया जा सकता है, बच्चे को कहीं अभिभावकों से दूर किया जा सकता है। इसीलिए आप
जानकारी के व्यक्ति को ही उसको सौंपते हैं। इसीलिए आप रिक्शे वाला या बस वाला जो रेस्पॉन्सिबल हो उसी पे ये ड्यूटी डालते हैं कि आप हमारे बच्चे को लेके जाएंगे, नहीं तो कहीं चल दिया फिर। इसीलिए आप एक रेस्पॉन्सिबल एजेंसी को देते हैं। इसीलिए ज्यादातर स्कूल ही अपनी बसेस रन करती हैं कि जिससे कि स्कूल की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहे कि आप लेके गए थे मेरे बच्चे। और जब वो बच्चा चला जाता है स्कूल की बस में, तो स्कूल की बस है, अगर वो स्कूल ही की है तो स्कूल तब से उसका लॉफुल गार्जियन होना शुरू। अब कोई उस बच्चे को लेके चला गया बीच में से जिसको कंसेंट नहीं था, तो इट इज आउट ऑफ लॉफुल पोजेशन, इट इज आउट ऑफ लॉफुल गार्जियन। अब आप कहोगे कि माँ बाप के कंट्रोल में तो था नहीं, तो किसी और के पास था, मैं ले गया, तो क्या? माँ बाप ने ही तो सौंपा है। इट विल स्टार्ट फ्रॉम द कंसेंट, इट विल एंड विद कंसेंट, इट विल स्टार्ट फ्रॉम कंसेंट। बच्चे का सबसे पहला अभिभावक, सबसे पहला लॉफुल गार्जियन माँ बाप ही है। ये वहां से कंसेंट की कहानी शुरू होगी कि मैंने हां करी तुम ले जाओ, तुमने हां करी उनको तो तुम ले जाओ, वहां से कहानी शुरू होगी। अगर आप इतनी सी बात समझ गए तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, जब भी न्यूज रिपोर्ट आए, बच्चा कितने साल का है? अच्छा, 18 से नीचे लड़की, 16 से नीचे लड़का, क्या लिखा है, क्या लिखा है? माँ बाप से पूछे बगैर, स्कूल वालों से पूछे बगैर। तभी आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी को भेजो स्कूल में बच्चे को लेने के लिए, तो हमेशा स्कूल वाले आपको फोन करते हैं, हाँ जी आप तो आए नहीं, ये कौन आया है? क्यों? क्योंकि उनको ये देखना है कि हम जिसको सौंप रहे हैं, हम उसे कंसेंट जो दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, वो कौन व्यक्ति है। ऐसे तो कोई भी आके बोल देगा इस बच्चे का मामा हूं मैं, इसको घर ले जाने आया हूं, और वो दे देगा उसको। वो लेकिन गार्जियन से फोन करके पूछेगा कि हाँ जी आप ही के बिहाफ पे आए हैं, नहीं तो हमें तो यही पता है, आपने हमें कंसेंट दिया, बच्चे को हमें सौंपा, हम आपको वापस सौंपेंगे। और जब तक बच्चा आपके पास रहेगा स्कूल में, आप उसके लॉफुल गार्जियन होते हैं। इसीलिए गेट बंद होते हैं स्कूल के, इसीलिए वो आपको डांटते डपटते हैं, इसीलिए वो आपको क्लास में बिठाते हैं कि चलिए अंदर क्लास में, कोई बाहर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी मूवमेंट पे कंट्रोल रखना है, ये स्कूल वालों की जिम्मेदारी है, वो लॉफुल गार्जियन है। और स्कूल से कोई उठा के किसी को ले जाए बिना कंसेंट के, आप भी कंसेंट तभी दोगे ना जब आप सुनिश्चित कर लेंगे कि सब सेफ है। आपके कंसेंट के बगैर कोई स्कूल से ले गया तो किडनैपिंग है, व्यभिचार है। बहुत सिंपल है, कंसेंट ऑफ द लॉफुल गार्जियन चाहिए। एंड होना क्या चाहिए, दैट ही टेक्स, अगर ये तीनों फैक्टर्स आपके फुलफिल हो रहे हैं, टेक्स और एंटाइस, टेक्स और एंटाइस आउट ऑफ कीपिंग ऑफ लॉफुल गार्जियन। अच्छा, व्यक्ति करता क्या है? क्या वो बल प्रयोग ले जाता है? क्या वो बल का प्रयोग करके उठा लेता है? क्या करता है? यहां पर वर्ड यूज किया गया है टेक्स। अब आपको याद आ गया होगा, किडनैपिंग, चाइल्ड स्टीलिंग, थेफ्ट। देखो चाइल्ड वर्ड बोलना थोड़ा सा दिक्कत है, चोरी वर्ड क्योंकि सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी पे लगती है, तो बच्चा कोई मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। तो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो? आप क्या करते हो, बच्चे को पकड़ा और चल दिए, बच्चा भी आपके साथ चल दिया। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती ले गए। आपने बच्चे का हाथ पकड़ा और लेके चल दिए, बच्चा क्या होता है, बहलाया फुसलाया जा सकता है। बच्चा क्या होता है, बेचारा नादान होता है, बच्चा चल पड़ता है, वो इतना नहीं देखता कि कौन आया है, वो बस चल पड़ेगा। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ बच्चों में ये ट्रेट ही नहीं होता कि स्ट्रेंजर के पास जाने से पहले रो ले, नहीं तो बच्चा रो पड़ता है, पता नहीं कौन है। इसीलिए अच्छा माना जाता है कि माँ बाप के पास जो बच्चे चिपके रहें और दूसरे के पास जाने से पहले रोएं, गिड़गिड़ाएं या फिर हल्ला मचा दें, ये बच्चे सबसे सही हैं। क्योंकि जिसको दूसरे के पास जाने में दिक्कत नहीं हो रही, दिन भर वो जिनके पास सुरक्षित महसूस करता है, अगर वो किसी और के पास जिसको कभी नहीं देखा वैसे ही चला जाता है और घूम फिर आता है, तो वो बच्चा बड़ा खतरनाक है। किस मामले में? क्योंकि उसको बड़े आराम से कोई भी ले जा सकता है और वो कोई शोर नहीं मचाएगा। उसके बाद जब वो गायब हो जाएगा तो किसको क्या पता कहाँ है।
लेकिन जिन बच्चों में ये ट्रेट है कि जो अपने माँ बाप के पास रहते हैं तो सुरक्षित महसूस करते हैं, स्ट्रेंजर के पास जाते ही पूरे देर आर क्राई बेबी, क्रिबिंग शुरू, रोना धोना शुरू, पूरा सड़क पे लेट जाते हैं कि ये कौन है, हटो हटो हटो, धक्के मारते हैं बच्चे, ये सबसे सेफ बच्चा है। ये इतना ह्यूमन क्राई मचा देगा कि आसपास वाले पूछेंगे हाँ भाई क्या हुआ, फिर शक होगा आपको कहीं ना कहीं कि क्या हुआ, क्यों रो रहा है। फिर आप चुप कराओगे, वो चिल्लाएगा मम्मा पापा, तो ऑब्वियसली मम्मा पापा अगर वही होते तो वो क्यों चिल्ला रहा होता। बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको, अपने बच्चों को थोड़ा सा ट्रेन भी करिए इस मामले में कि अगर वो दूसरों के पास जा रहे हैं बहुत इजीली तो उनको थोड़ा सा रोना सिखाइए भी, जिससे कि वो कल क्राई कर, थोड़ा सा एक ह्यूमन क्राई क्रिएट कर सकें और उस क्लैमर में एटलीस्ट पता चले आपको कि क्या हुआ है, ऑब्जेक्शंस मिले। क्लियर है? तो हाँ, करते क्या है, अगर आप एक 16, अब देखिए चारों को जोड़ दीजिए, अगर बच्चा 16 साल से नीचे है, लड़की लड़का 18 साल से नीचे लड़की, या फिर कोई अनसाउंड माइंड है, अभी परिपक्व दिमाग का नहीं है, अपने बारे में नहीं सोच सकता, बेचारा कहीं भी चल देता, कोई भी ले जाए, उसको भी कंट्रोल चाहिए। और बिना लॉफुल गार्जियन के कंसेंट के कोई उसको ले जाए, टेक अवे, टेकिंग आप समझ गए, दूर ले जाना, या फिर एंटाइस कर ले, एंटाइस का मतलब बहला ले फुसला ले, इंड्यूस, एंटाइस को इंड्यूस भी बोलते हैं। आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ दिस लॉफुल गार्जियन, मतलब जो भी उस वक्त उसके मूवमेंट पे कंट्रोल कर रहा है, उसके कीपिंग, कीपिंग मतलब उसके कंट्रोल से उसको बाहर ले जाए। तो अगर स्कूल में है तो स्कूल वाले कंट्रोल कर रहे हैं, तो आप स्कूल वालों की कंट्रोल से बाहर ले जाए तो वो किडनैपिंग है। माइंड इट, अगर स्कूल वालों के कंसेंट के बगैर माँ बाप भी ले जाते हैं ना, तो भी किडनैपिंग मानी जा सकती है। इसीलिए जब आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल वालों से परमिशन लेते हैं कि जी ले जाएं, क्योंकि जब तक स्कूल चल रहा है, बच्चा स्कूल में है, वो स्कूल वालों की जिम्मेदारी है। वो तो आपको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आप माँ बाप हैं, इसीलिए वो आपको ले जाने देते हैं, पर आप फिर भी परमिशन लेते हो। लिखित में क्यों देते हो? क्योंकि कल आप ये ना बोलो कि हम आए, ये हमारा बच्चा गायब हो गया एक दिन इनके यहाँ से, फिर वही तो बताएंगे देखिए सर आप एप्लीकेशन लेके आए थे कि इसको इस वक्त जाने दीजिए, कोई इमरजेंसी है तो हमने आपको जाने दिया, ये आपकी एप्लीकेशन है, आपके साइन है, आप उस दिन आए थे, देखिए आपको हमने इसलिए परमिशन दी क्योंकि आप माँ बाप हैं। अब लगाओ एलिगेशन, नहीं लगा सकते। परमिशन बहुत जरूरी है, कंसेंट बहुत जरूरी फैक्टर है। हर चीज जो हो रही है वो एविडेंस क्रिएशन है, जिससे कि आपका ऑफेंस ना दिखे। तो अगर आप बिना पूछे ले जाएं, अब आपके गोद से कोई आपके बच्चे को अपनी गोद में ले ले, तो आप देख नहीं रहे हो क्या कि वो ले रहा है? रोक दो ना उसको, अगर नहीं कंसेंट देनी। अगर आप फिर भी जाने दे रहे हैं तो आप कंसेंट ही तो दे रहे हैं, और क्या चाहिए? कंडक्ट में भी तो कंसेंट होता है, जरूरी थोड़ी कंसेंट ऐसे ही हो कि क्या मैं अपने आपके बच्चे को हाथ लगा के ऐसे अपने गोद में ले सकता हूं? आप कहेंगे जी जी जी, ये जब करने की जरूरत नहीं होती, कंडक्ट में भी हो जाता है, इंप्लाइड बोलते हैं इसको, बाय नेसेसरी इंप्लीकेशंस। तो अगर कंसेंट थी तो कोई दिक्कत नहीं, कंसेंट नहीं थी तो देखिए 16 साल से नीचे या फिर अनसाउंड माइंड, कंसेंट नहीं थी, ले गया या खुद ले गया हाथ पकड़ के, या बहला फुसला के, एंटाइस का मतलब इंड्यूस, इंड्यूस मतलब बहला फुसला के, उसके कीपिंग, कीपिंग मतलब उसके कंट्रोल से बाहर ले गया, उसी को किडनैपिंग बोल देते हैं। इसी को व्यपहरण कहा जाता है। ये जो टेकिंग है ना, और ये जो इंड्यूसमेंट है, जो एंटाइसमेंट है, अब जरा आप एबडक्शन या अपहरण की डेफिनेशन को जरा ध्यान से देखिए, उसमें ऑलमोस्ट जो शब्द यूज किए गए हैं वो कहीं ना कहीं इनमें फॉल कर जाते हैं। इसीलिए जब ये इंग्रेडिएंट्स पूरे हों तो हम जनरली यही मानते हैं कि व्यपहरण ही हुआ है। और अगर आप उसको अपहरण लिख भी दें, बस आपको क्या देखना है कि बल का प्रयोग किया हो और छल का प्रयोग किया हो। अगर इस टेकिंग में फोर्स आ जाए और इस इंड्यूसमेंट में डिसीट आ जाए,
डिसीट का मतलब छल, सॉरी छल, फ्रॉड, डिसीट, डिसेप्शन इसको बोलते हैं, फोर्स मतलब बल। भाई एक तो टेकिंग है, हाथ पकड़ा और चल दिए जी आराम से, इसमें मैंने कोई बल का प्रयोग तो नहीं किया, मैंने तो बस हाथ पकड़ा, चल बेटा आज चलें तेरे माँ बाप के पास, वो बेचारा हाथ पकड़ा चल दिया। जब आपने कहा कि चल बेटा मम्मी पापा के पास चलते हैं, वो चला नहीं, फिर चॉकलेट निकाली, देख चॉकलेट दूंगा आजा आजा, चल पड़ा, एंटाइसमेंट, इंड्यूसमेंट। अब इसमें छल का प्रयोग नहीं है, बल का प्रयोग नहीं है, ये सिर्फ टेक्स और एंटाइस में आ गया, इंड्यूसमेंट, ल्योर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चॉकलेट दे ही दोगे आप उसको, इसलिए छल नहीं है। जब आप चॉकलेट ना देना चाहो तो छल है। बहुत छोटी छोटी डिफरेंसेस हैं, अपहरण व्यापरण समझ जाओगे, मुझे जरूरत भी नहीं पड़ेगी आगे आपको कोई भी चीज समझाने की, आप देखना पढ़ते पढ़ते ही सब समझ जाएंगे अपने आप। अगर यहां तक ये बात समझ में आ गई हो कि जैसे ही आप इस टेकिंग में बल का प्रयोग कर लेंगे तो ये अपहरण भी बन जाएगा, और इस इंड्यूसमेंट में छल का प्रयोग कर लेंगे तो ये अपहरण बन जाएगा। तो अपहरण एक बच्चे का भी हो सकता है, पर क्योंकि इस टेकिंग में वो फोर्स हम मान लेते हैं कि इंक्लूडेड है, क्योंकि हम इस एंटाइसमेंट में डिसीट मान लेते हैं इंक्लूडेड है, इसलिए हम क्या करते हैं, हम इन दो फैक्टर्स को ही या तीन फैक्टर्स को ही सिर्फ देखते हैं कि कंसेंट ऑफ लॉफुल गार्जियन नहीं लिया, क्योंकि बच्चे के लिए गार्जियन होना बहुत जरूरी है। आप जब बच्चे को कहीं फोर्स से भी ले जाएंगे तो आपको गार्जियन का कंसेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो वयस्क होते हैं, जो 18 साल से ऊपर बच्चे होते हैं या फिर जो अच्छे खासे एडल्ट हो जाते हैं, उनको किसी के कंट्रोल की जरूरत नहीं है, वो अपने मूवमेंट को खुद डिसाइड करते हैं। अब उनको ले जाने के लिए या तो आप बहला फुसला के बुला सकते हैं कि अरे आ जाओ भाई यहां पर पार्टी चल रही है, आजा चलेंगे, इस तरफ आजा यहां मिल ले, धोखा दिया, पार्टी नहीं चल रही थी, उनको वहां पर किसी और काम के लिए बुलाया गया, ये डिसीट था। या फिर आप बलपूर्वक ही उसे ले जा पाएंगे, आप ऐसे उसको बस पकड़ के हाथ नहीं कहीं ले जा सकते, चॉकलेट दिखा के नहीं बुला सकते, छल करना पड़ेगा आपको। सच बात बताई तो नहीं आएगा, झूठ बोलोगे तभी आ पाएगा, झूठ बोलना ही छल है। तो वयस्कों में तो हम अपहरण ही करते हैं, लेकिन 16 साल से नीचे लड़का, 18 साल से नीचे लड़की और गार्जियन का जहां पर रोल आ जाता है वहां पर व्यपहरण ही माना जाता है। और टेकिंग में फोर्स भी है, एंटाइसिंग में डिसीट भी है, इसीलिए अपहरण और व्यपहरण इस मामले में कहीं ना कहीं सबस्यूम हो जाते हैं और हम इसको अपहरण ही बोल देते हैं, व्यपहरण ही बोल देते हैं, किडनैपिंग ही बोलते हैं। इसलिए आपको दो तीन फैक्टर्स देखने हैं, वो है कि बच्चा 16 साल से नीचे, 18 साल से नीचे ना हो, बॉय और गर्ल, अनसाउंड माइंड ना हो, ये देख के लॉफुल गार्जियनशिप देखनी है कि भैया गार्जियन के कीपिंग से बाहर ले गया। अब वो भले ही बल से ले गया या नॉर्मल ले गया, डिसीट किया या एंटाइस किया, हमें उससे कोई मतलब नहीं, व्यपहरण में आ जाएगा, एज सिंपल एज दैट। तो ये तो न्यूज रिपोर्ट्स जो लिखते हैं वो भी अगर समझ लें तो व्यपहरण और अपहरण का डिफरेंस आप आराम से अपने न्यूज रिपोर्ट्स में लिखना शुरू करेंगे, लोगों को भी जिज्ञासा होगी कि व्यपहरण है क्या और अपहरण क्या है। सिंपल, सिर्फ बल का प्रयोग किया, ले गए, या छल का प्रयोग किया, कहीं बुला लिया। बल का प्रयोग करके तो लेके ही जाओगे, छल का प्रयोग करके कहीं बुला लोगे, जैसे यहां पे बैठे बैठे फोन किया, वो बेचारा जहां बुलाना था वहां पहुंच गया छल का प्रयोग करके। डिसीटफुल मीन्स वो हो गया अबडक्शन। अब दोनों में एक चीज और बड़ी खास है, किडनैपिंग जो है ना, व्यपहरण, ये एक ऑफेंस है, ये क्राइम है, लेकिन अपहरण अपने आप में क्राइम नहीं है। बड़ी विचित्र सी बात है, अपहरण अपने आप में एक क्राइम नहीं है, मतलब वो अपराध नहीं है अपने आप में। अपने आप में मतलब अगर किसी को आप बलपूर्वक पकड़ लें और उसको उस जगह से निकाल के कहीं ले जाना चाहें और कहीं ले जा रहे हो तो ये अपराध नहीं है, करो बल का प्रयोग और करो जो मर्जी करना है। और दूसरे अपराध लग जाएंगे वो बात अलग है, क्रिमिनल फोर्स लगेगा, असॉल्ट लगेगा, असॉल्ट लगेगा, इसको सेक्सुअल असॉल्ट से मत कंफ्यूज कर देना, सेक्सुअल असॉल्ट अलग है, असॉल्ट अलग है। असॉल्ट लगेगा, क्रिमिनल फोर्स लगेगा,
हो सकता है इसी में थोड़ा बहुत हर्ट भी लग जाए, लेकिन ऐसा बलपूर्वक किसी को पकड़ के ले जाना, ये जो है अपने आप में अपराध नहीं है। अगर ये बलपूर्वक पकड़ के आप किसी और अपराध करने के लिए ले जा रहे हैं तो अपराध है। बल का प्रयोग या छल का प्रयोग करके अगर आपने कहीं किसी को बुलाया और आपने उसके साथ कोई अपराध नहीं करना था, तो इसका कोई अपराध नहीं बनता। अगर ये बात समझ में आ गई हो तो यही मेजर डिफरेंस है व्यापरण और अपहरण का। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जो किडनैपिंग है ये भी दो प्रकार की होती है, सब आईपीसी में दिया है, भारतीय दंड संहिता में। किडनैपिंग दो प्रकार की होती है, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियन। मैंने आपको एब्डक्शन और लॉफुल गार्जियन के बीच का डिफरेंस बताया। किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया का मतलब भारत से बाहर ले जाना। अच्छा, भारत से बाहर ले जाने वाले को भी उम्र के दायरे में नहीं रोक रहे, जैसे एब्डक्शन को उम्र के दायरे में नहीं रोका गया, ऐसे ही किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया मतलब भारत की बाउंड्री से, इंटरनेशनल बाउंड्री से बाहर ले जाने को भी उम्र आयु सीमा में नहीं रोका गया। वहां भी आप किसी को भी भारत से बाहर ले जाएं, भले वो बच्चा हो या बूढ़ा हो, उसको किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया बोलते हैं। अब अगर किडनैपिंग किड की ही बात कर रहा होता तो फिर किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया में किड क्यों आता? तो एक ये वैसे कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, पर ये बस समझने वाली बात है कि किडनैपिंग में किड वर्ड को हमने कैसे समझना है। 16 साल से नीचे लड़का, 18 साल से नीचे लड़की, ये किड माने जा रहे हैं, ये चाइल्ड माने जा रहे हैं। अगर ये बात समझ में आ गई हो तो ये था आपका ब्रीफ कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस, समझ में आ गया होगा। अब जरा आप धीरे धीरे इंग्रेडिएंट्स पढ़िए और देखिए, आपके सामने समक्ष सब कुछ है। ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग एब्डक्शन आर प्रोवाइडेड अंडर आईपीसी. It talks about forcefully taking a person or a child from guardianship with or without the consent for that matter. Both the offenses are given under chapter 16, offense affecting human body. आपको मैंने बताया था चैप्टर का क्या मतलब है। किडनैपिंग दो तरीके की बताई गई हैं, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया और किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियन। मैंने जो मेन डिफरेंस आपको समझाया वो किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियन और एब्डक्शन का समझाया। ठीक है जी। किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियन। फ्रॉम इंडिया 360 में है और लॉफुल गार्जियन 361 में है। 360 में लिखा है whoever conveys any person beyond the limits of India. Beyond the limits of India मतलब beyond the limits of India, beyond का मतलब लिमिट ऑफ इंडिया, जो आपका भारतीय मैप है इसके बाहर ले जाता है, मतलब इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस करवा देता है, विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन, बिना उस पर्सन के कंसेंट के, और ऑफ सम अदर पर्सन लीगली ऑथराइज्ड टू कंसेंट ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन, या फिर उस व्यक्ति पे जो कंसेंट दे सकता है उसके कंसेंट के बगैर। दैट मींस बच्चा और वो वयस्क खुद दोनों इंक्लूडेड हैं इस डेफिनेशन में। कंसेंट ऑफ दैट पर्सन, दैट मतलब वो जिसका जो अडल्ट है, जो कंसेंट देने लायक है। जनरली कंसेंट देने लायक जो होते हैं वो 18 साल या 18 साल से ऊपर हो जाते हैं, 18 और अबव 18, वो अपने आप कंसेंट दे सकते हैं। उसके कंसेंट के बगैर ले गए, अगर उसने कहा ले जाओ फिर तो बात ही अलग है, वो उसके बगैर ले जा रहा है तभी तो अपराध बन रहा है। और ऑफ सम पर्सन लीगली ऑथराइज्ड टू कंसेंट ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन, मतलब कोई लीगल ऑथराइज्ड पर्सन जो उसके बिहाफ पे कंसेंट दे सके, जैसे कि बच्चा या अनसाउंड माइंड, इनके बिहाफ पे कंसेंट दी जाती है। उसको कंसेंट लिए बगैर भारत से बाहर ले गए, किसी बच्चे को भारत से बाहर ले गए, तो किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया हो रहा है। किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियन भी होगा, लेकिन फ्रॉम इंडिया भी लग जाएगा। इज सेट टू किडनैप दैट पर्सन फ्रॉम इंडिया। फिर किडनैपिंग नॉर्मली लिखा है, अब देखो जो मैंने बातें कही थी वो चारों बातें आपको दिख जाएंगी। Whoever takes or entice, टेक्स और एंटाइस वर्ड बताया था मैंने, उसी टेक में फोर्स है, उसी एंटाइस में इंड्यूसमेंट है। एनी माइनर अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज, 16 साल का माइनर, इफ मेल, मेल मतलब बॉय, और अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज इफ अ फीमेल, 18 साल, ये पहला इंग्रेडिएंट। और एनी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, देखो यहां लिखा है एनी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, यहां नहीं लिखा माइनर ऑफ अनसाउंड माइंड। एनी पर्सन मतलब माइनर मेजर, किसी भी उम्र का हो, नो एज लिमिट। एनी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ लॉफुल गार्जियन, गार्जियन के कंट्रोल से ले गए, ऑफ सच माइनर और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड विदाउट द कंसेंट ऑफ सच गार्जियन, बिना उससे पूछे।
इज सेट टू किडनैप सच माइनर और पर्सन फ्रॉम लॉफुल गार्जियन। माइनर का मतलब ये एज वाला, पर्सन मतलब अनसाउंड माइंड। हो गया जी क्लियर? कितना आसान था। Explanation: The words lawful guardian in this section includes any person lawfully entrusted with care or custody of such minor. Lawfully entrusted with the care and custody of such minor. Lawfully entrusted, अगर आप एक पड़ोसी को अपने बच्चे को सौंप गए कि जरा 5 घंटे ध्यान रख लीजिए दीदी, हम आ रहे हैं, ऐसे ही होता है, हम जरा वहां से हो आए, ऐसे ही बोलते हैं। आप प्लीज 5 घंटे देख लेंगे हमारे बच्चे को, 2 घंटे देख लेंगे। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। So if you give it to a daycare, if you give your child to a daycare, you are entrusting them with the care and custody of that minor. आप उनको केयर करने के लिए और उसकी कस्टडी के लिए दे रहे हैं। वो कस्टडी जो जाएगी उनके पास, या जो केयर करने के लिए आपने उनको ऑथोराइजेशन दी है, वो उनको लॉफुल गार्जियन बना देगी। लॉफुल गार्जियन, लीगल गार्जियन नहीं। लीगल गार्जियन का कॉन्सेप्ट अलग है, लेकिन लॉफुल गार्जियन में लीगल गार्जियन भी होते हैं और अदर पर्सन। ठीक है जी, एक्सेप्शन की अभी हमें जरूरत नहीं है, उतनी बड़ी कोई बात नहीं। ये आपको बड़े आराम से इंग्रेडिएंट समझ में आ जाएंगे। कन्वेइंग एनी पर्सन बियॉन्ड द लिमिट ऑफ इंडिया, सच कन्वेंस, ये 360 का है, फ्रॉम इंडिया। ठीक है जी, 361 के भी आ गए। टेकिंग, एंटाइसिंग, मैंने आपको चारों इंग्रेडिएंट समझा दिए। माइनर अनसाउंड, आउट ऑफ कीपिंग ऑफ लॉफुल गार्जियन, विदाउट कंसेंट, टेकिंग और एंटाइसिंग। इसके बाद ये केस एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एस वरदराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, लेकिन इस केस के बारे में कोई चर्चा करके हमें ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। दे एग्जॉस्टिव एक्सप्लेनेशन है इसी सेक्शन की, ये हम जब लेक्चर होगा तब कर ही लेंगे। एब्डक्शन देखिए क्या लिखा है, हुएवर बाय फोर्स कंपेल्स, बाय फोर्स और बाय एनी डिसीटफुल मींस, डिसीटफुल मींस, तो बाय फोर्स, कंपेल्स और बाय डिसीटफुल मींस इंड्यूसेस। देखो, इंड्यूसमेंट, एंटाइसमेंट, पर कैसे इंड्यूस कर रहा है? डिसीटफुल। डिसीट का मतलब छल, झूठ बोल के, झूठ बोल के, डिसीट। सही बात बताएगा तो डिसेप्शन नहीं होगी। देखो, अगर आप सच बोलते हैं तो डिसेप्शन नहीं होती, झूठ बोलते हैं तो डिसेप्शन होती है। कोई चीज नहीं है वो बताते हैं तो झूठ बोलते हैं तो डिसेप्शन आती है। तो अगर आप फोर्स या फिर डिसीट, इन दो फैक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं और किसी को एक जगह से, एनी पर्सन टू गो फ्रॉम वन टू एनी प्लेस इज सेड टू एबडक्ट दैट पर्सन, एक जगह से उसको मूवमेंट करा देते हैं, तो यू आर सेड टू एबडक्ट दैट पर्सन। इसका मतलब आपने उसका एबडक्शन कर लिया, इसको बोलते हैं अपहरण। और यहां पर कहीं भी एज बार नहीं लिखी हुई, यहां लिखा है हुएवर बाय फोर्स, कंपेल्स और डिसीटफुल मींस इंड्यूसेस एनी पर्सन। एनी पर्सन का मतलब एनी पर्सन ऑफ एनी एज, किसी भी उम्र का हो। तो अपहरण तो आप बच्चे का भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप अपहरण की डेफिनेशन पे आएंगे तो आप अपहरण की डेफिनेशन में समझेंगे हुएवर बाय फोर्स, कंपेल्स और बाय एनी डिसीटफुल मींस इंड्यूसेस एनी पर्सन टू गो फ्रॉम एनी प्लेस। इसमें सिर्फ दो चीजें चाहिए, पहली फोर्स या डिसीट, मतलब व्हाट इज द मींस बाय विच यू आर आस्किंग समवन टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फोर्स और डिसीट, और सेकंड he has to move from one place to another, moved from one place to another। कंसेंट वंसेंट की बातें नहीं कर रहे, और ये दोनों चीजें ऑलरेडी व्यपहरण के केस में हैं। इसीलिए ज्यादातर क्या होता है कि 16 साल से नीचे लड़का, 18 साल से नीचे लड़की या अनसाउंड माइंड को अगर आप फोर्सफुली भी ले जाते हैं तो दैट इज सबस्यूम्ड अंडर द टर्म टेक्स एंड एंटाइस, एंड दैट इज व्हाई व्हेनेवर द केस कम्स, द केस इज ऑफ किडनैपिंग। इसीलिए व्यपहरण बोलना उचित है, अगर आप रिपोर्ट में भी लिखते हैं तो व्यपहरण बोलना उचित है।
अगर वो 16 साल से नीचे, 18 साल से नीचे अनसाउंड माइंड है, लॉफुल गार्जियन से, ऑब्वियसली लॉफुल गार्जियन तो होगा ही ना, बिना किसी गार्जियन के बच्चा नहीं हो सकता। ये भी आप कानून में समझ के चलिए, 18 साल तक गार्जियन कंपलसरी है, तो बिना गार्जियन के तो कोई होता नहीं, और गार्जियन की कंसेंट के बगैर आप ले जा नहीं सकते। फोर्स लगाएंगे तो भी आपने बिना पूछे ले गए, पूछ के फोर्स लगाई तो क्या दिक्कत है। अब फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल वाले को, स्कूल में आया कोई कि बच्चे को लेने आए हैं स्कूल, तो आपने कहा हाँ हाँ ले जाओ इसको, बच्चा नहीं जा रहा है, अरे उठा के ले जाओ, तो वो फोर्स ही लगा रहा है। अब आप कहेंगे तो फोर्स लगा के ले गया, अबडक्शन हो गई, अपहरण हो गया, अपहरण नहीं है ना, कंसेंट है, कंसेंट ऑफ लॉफुल गार्जियन है। उसने ही तो बोला कि उठा के लेके जाओ इसको, पढ़ेगा लिखेगा नहीं, नहीं तो यही काम है इसका। वो 2-3 शब्द जो आगे बोला वो तो अलग है, पर जो वो लेके जाओ बोला बस वही कंसेंट है। को समझ में आती है कि ये स्कूल ऐसे नहीं जाएगा। कभी कभी रिक्शा या बस में जाने के पहले भी बच्चे रोते हैं नहीं जाना, फिर आप क्या करते हो, उठा के उसको बस में फेंक देते हो, वही करते ही हो, बिठाते थोड़ी हो, बेचारा वो रो पिट रहा है। इफ यू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट, तो एबडक्शन, अपहरण को जब आप देखेंगे तो अपहरण तो बहुत ही छोटी सी बात बोल रहा है, किसी को बल प्रयोग करके एक जगह से मूव कर देना या छल प्रयोग करके एक जगह से मूव कर देना, इतना ही अपहरण है। अब इतने में किसी को सजा क्या दोगे, सिर्फ इतने में, इसका मतलब इसके साथ कुछ और भी जुड़ना चाहिए, तब जाके तो आप बताओ ना कि भाई क्यों किया आपने ये। इसीलिए इसको अपने आप में अपराध नहीं बनाया गया, दिस इज नॉट एन ऑफेंस पर से। सो एबडक्शन इन इटसेल्फ इज नॉट एन ऑफेंस, इट हैज टू बी attached or included with some other offense to make it an offense. That is why abduction in itself is not an offense, क्योंकि इसके ingredients बहुत crude हैं, raw है, if you understood this. So that is the main difference between the two. अब अगर 5 नंबर में सवाल है किडनैपिंग abduction के बीच में डिफरेंस, तो ये रहे आपके, देखिए गार्जियनशिप का यहाँ कोई रोल नहीं, यहाँ पर है माइनर मेजर का यहाँ कोई रोल नहीं, अबडक्शन में, किडनैपिंग में है। जो जो हमने 4 इंग्रेडिएंट्स पढ़े वो अबडक्शन में नहीं दिख रहे, वही आपके डिफरेंसेस हैं। कितना सिंपल हो गया ये देखिए, किडनैपिंग द माइनर इज सिंपली टेकन अवे, द मीन्स एम्प्लॉयड इन अबडक्शन आर फोर्स, कंपल्शन और डिसीटफुल मेथड्स। कंसेंट ऑफ द पर्सन एंटाइज इज इमटेरियल, consent of the person matters if a person is removed with free consent, in that case offense abduction is not committed, although it is not an offense of abduction, कोई offense of abduction होता नहीं, it is just a matter of writing, ठीक है। consent of the person enticed is immaterial, जिसकी एंटाइसमेंट हुई है उसका कंसेंट नहीं चाहिए, उसके लॉफुल गार्जियन का कंसेंट चाहिए। कभी कभी इसीलिए इसको स्ट्रिक्ट ऑफेंस भी बोला जाता है कि यहाँ पर मेंसरिया का कोई लेना देना नहीं है। मेंसरिया का क्या लेना देना नहीं है वो हम तब समझेंगे जब मेंसरिया समझ जाएंगे और उसके एस्पेक्ट समझ जाएंगे, तो आपको वो बात समझ में आएगी। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी मैंने अभी आपको बोला एक डिफरेंस बन जाता है, इन किडनैपिंग द इंटेंट ऑफ पर्सन इज इमटेरियल, मतलब जो एक्यूज्ड है, जो लेके जा रहा है, उसकी क्या इंटेंशन है उसको ले जाने की, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मतलब वो क्यों ले जा रहा है इसको, अरे बस वैसे ही मुझे लगा मेला घुमा के लेके आऊं, पर तुम हो कौन उसे मेला घुमाने वाले, तुमने पूछा इनके माँ बाप से? नहीं, तो तुम हो कौन इसको, अब भले ही तुम अच्छे काम के लिए ले जा रहे थे, हमें नहीं देखना, आपने ले गए, बिना पूछे ले गए, बच्चा छोटा था, 16 साल 18 साल से नीचे, किडनैपिंग हो गई, तो इंटेंट इज इमटेरियल, दैट इज व्हाई मेंसरिया इज नॉट रिक्वायर्ड, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज दैट, ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंस है। ये सब क्या है, ये सब आईपीसी में पढ़ेंगे। इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन द ऑफेंस इन अबडक्शन, पर अबडक्शन अपने आप में ऑफेंस नहीं, ध्यान रखना। कंप्लीशन, इट इज नॉट अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस, किडनैपिंग जो है वो कंटिन्यूइंग ऑफेंस नहीं है, पर अबडक्शन एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, मतलब जब तक फोर्स लगती रहेगी, जब तक छल चलता रहेगा और वो मूवमेंट करता रहेगा, ये ऑफेंस होता चला जा रहा है, समझ लीजिए। किडनैपिंग में एक बार आपने खिसका दिया, किडनैपिंग खत्म, फिर कोई कंटिन्यूएशन नहीं। किडनैपिंग फ्रॉम गार्जियनशिप इज अ सब्सटैंटिव ऑफेंस, पनिशेबल। एबडक्शन इज एन ऑक्सिलरी एक्ट, नॉट पनिशेबल। ऑक्सिलरी एक्ट मतलब ये एक मीन्स है ऑफेंस करने का, abduction is a means of doing offense, kidnapping is not that means, kidnapping is a offense in itself। छोटा सा डिफरेंस। अब देखिए अगर डिफरेंस पे आपका क्वेश्चन आता है 5 नंबर में, तो ये जो आपके डिफरेंसेस हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 डिफरेंसेस आपके बहुत हैं, ये एक पेज, दूसरा पेज और ये तीसरा पेज, ये 3 बहुत है लिखने के लिए 5 नंबर में। और जैसे ही आपका आ जाए 10 नंबर में, तो आप
प्रोविजन के साथ इंग्रेडिएंट्स को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करके लिख दें, उसके बाद ये डिफरेंस दे दें, 10 नंबर का आपने पूरा कर दिया। इसीलिए स्लाइड काम की है, इफ यू अंडरस्टैंड। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। विल कम अप विद सम अदर वीडियोस आल्सो लाइक दिस, so we understand that what is the aspects of certain topics and discussions around it. So we meet you again. Thank you for today.